Before repayment plans, we'll know the procedure which is followed while sanctioning the farm loans. Now, the financing bank, it has the full power either to accept or to reject the loan application of the farmer. जो भी financial bank है, उसके पास full power होते हैं कि वो farmers का loan application accept करे या reject करे. This exception and rejection is based on the 5 C's of credit, 5 C's, 3 R's, and 7 P's of credit. By those considering those three criteria, that is 5 C's, 3 R's, and 7 P's, the proposal is appraised. That is appraisal of farm credit proposal. This is called the appraisal of farm credit proposals, or procedure and formalities followed in processing of loans. Now, this procedure involves 10 steps, which includes first interview with the farmer, then submission of loan application by the farmer, scrutiny of records, visit to farmer's field before sanction of loan, criteria for loan eligibility, sanction of loan, then submission of requisite documents, disbursement of loan, post-credit follow-up measures, and then recovery of loan. So these are the steps followed in processing a loan application, or we can say appraisal of farm credit proposals. So first interview with the farmer. First step is interview with the farmer. Now banker has a good scope to assess the credit characters like honesty, integrity, frankness, indebtedness, repayment capacity of the farmer borrower while interviewing. जो भी हमारे 5 C's of credit है, वो सारे assess करने के लिए एक बार फार्मर बोरोवर और बैंकर उसमें एक मीटिंग हुई, वो पर्सनली मिले तो उन्हें वो असेस करने में इजी होता है. सो ड्यूरिंग इंटरव्यू बैंकर also he'll explain the terms and conditions under which loan will be sanctioned to the farmer. जो भी फार्मर है उसे लोन की टर्म्स और कंडीशंस भी इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने, जब वो पर्सनली मिलते हैं बैंकर और फार्मर, उन्हें एक्सप्लेन करने में फेस टू फेस मिलते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट होता है, तो यहाँ पे वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से बैंकर भी फार्मर को एक्सप्लेन कर सकता है, और बैंकर को फार्मर्स की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, उसके मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो 5 C's ऑफ क्रेडिट जो है, कॉमन सेंस, गुड कैरेक्टर, वो सारे फॉलो होते हैं कि नहीं, वो एक उस क्राइटेरिया में वो फार्मर बैठता है कि नहीं, ये जज करने में बैंकर को इजी होता है. Interview also helps banker to understand the genuine credit needs of farmer. Credit need farmer को सच में लोन की जरूरत है कि नहीं, whether his need is genuine, वो देखने के लिए भी इंटरव्यू में बैंकर को हेल्प करता है. So इंटरव्यू इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन बैंकर को फार्मर को स्टडी करने के लिए उसके डिटेल में उसकी क्रेडिट एक्चुअल क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स क्या है वो जानने, फार्मर्स को जानने के लिए एक मौका है. सो इट इज नॉट जस्ट द फॉर्मेलिटी. Then second step is submission of loan application. Once the banker he visits the farmer, he meets the farmer and he is satisfied by his credentials. That is वो सारे 5 C's of credit में बैठता है, उससे genuinely credit need है, तो वो बैंकर क्या कहेगा बोरोवर को कि आप लोन एप्लीकेशन भर दीजिए. Banker will give an application to farmer and farmer has to fill the details like उसके लोकेशन ऑफ फार्म, पर्पस ऑफ लोन, क्यों लोन चाहिए उसे, देन कॉस्ट ऑफ द स्कीम, क्रेडिट रिक्वायरमेंट, उसकी कितना अमाउंट चाहिए लोन, उसका फार्म बजट कितना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे सारे डिटेल्स उस फॉर्म में उसे भरने पड़ते हैं. नेक्स्ट he also has to include item like 10(1). 10(1) it is a form which indicates the ownership of the land or the title deeds. जो भी उस फार्मर लैंड है, उस फार्मर लैंड की ओनरशिप जो इंडिकेट करती है, वो बॉन्ड जो रहता है, लीगल डॉक्यूमेंट, उसे हम 10(1) कहते हैं. सो दिस इज आइटम शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड. एंड ऑल्सो another adangal, it is a statement of showing the cropping pattern adopted by the farmer borrower. उस फार्मर का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है वो जो डॉक्यूमेंट है बताता है, वो उसे अडंगल कहते हैं. Also he has to attach farm map,
देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव, जो भी उनमें उनकी विलेज में कोऑपरेटिव्स है तो वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नॉन इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम सब रजिस्टर ऑफ लैंड, देन एफिडेविट फ्रॉम द बोरोवर रिगार्डिंग हिज नॉन मॉर्टगेज ऑफ लैंड एल्सवेयर, और फार्मर को एक एफिडेविट भी बनानी पड़ती है कि उसकी जो लैंड है वो और कहीं पे मैंने गिरवी नहीं रखी है. So these are the things which he has to include in his loan application. Also, the passport size of photograph of the farmer is also attached to the loan application form. So ये सारे डिटेल्स भर के लोन एप्लीकेशन में लोन एप्लीकेशन फार्मर बैंक को सबमिट करता है. आफ्टर सबमिशन थर्ड स्टेप इज स्क्रूटिनिटी ऑफ रिकॉर्ड्स. जो भी इंफॉर्मेशन उसने उस लोन एप्लीकेशन में भरी है वो सारे इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है कि नहीं, जो भी सर्टिफिकेट्स लाइक 10-1 अडंगल, देन एफिडेविट जो उन्होंने बनाए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो लाए वो सारे रेलेवेंट है या नहीं, उसके लैंड उसकी जो भी लैंड उन्होंने बताई वो उसके नाम पे है कि नहीं, वो सारे जो भी रिकॉर्ड्स लोन एप्लीकेशन में फार्मर्स ने मेंशन किए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे तो वेरीफाई किए जाते हैं. दैट इज द स्क्रूटिनिटी ऑफ रिकॉर्ड्स. जो भी रिकॉर्ड्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई की जाती है. either through it is done from village revenue official. Bankers will contact village revenue officials और वहां से records को verify किया जाता है. Next step is visit to farmers field before sanction of loan. अब रिकॉर्ड्स का स्क्रूटिनी हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो गई, तो अब बैंकर क्या करेगा, वो फार्मर्स फील्ड पे एक विजिट करेगा. Why he will visit the farmer fields? Because he will assess the his farm. मतलब pre-sanction visit is expected to help banker in identifying the farmer and guarantor. जो भी farmer है वो उसके guarantor को identify करने के लिए. Also to locate the boundaries of land as per map. जो भी map उन्होंने इन लोन एप्लीकेशन में लोकेशन दी थी फार्म, तो उसके हिसाब से बाउंड्रीज, फार्म की बाउंड्रीज क्या है, असेस द मैनेजरल कैपेसिटी ऑफ द फार्मर. जो भी फार्मिंग अभी चल रहा है फार्म में उसके आधारित पे उसकी मैनेजरल कैपेसिटी, वो कैसे उसका एंटरप्राइज जो है फार्मिंग एंटरप्राइज वो कैसे मैनेज कर रहा है, उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की और उसकी व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारे चीजें वहां पे बैंकर क्या होते हैं वो असेस करते हैं. Also, details on economics of crop and livestock enterprise, economic feasibility of proposed projects, and farmers' loan position with the non-institutional source are ascertained in the pre-sanction visit. जब ये विजिट कर बैंकर विजिट करते हैं तो उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक एंटरप्राइज का, वो देखा जाता है. देन जो भी जिस पर्पस के लिए फार्मर लोन मांग रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट फार्मर नया स्टार्ट करना चाहता है तो वो प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो सारे वहां पे वो डिटेल्स लेते हैं. ऑल्सो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स लाइक मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड के पास क्या उसने लोन लिया है वो भी वहां विजिट में वो कंफर्म करता है. Then while appraising different types of loan, different aspects are verified. जो based on the types of loan, जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स वो वेरीफाई की जाती है फार्मर्स फील्ड विजिट में. फॉर एग्जांपल, अगर लोन वेल डिगिंग के लिए देने वाले हैं बैंक, तो उसमें वो क्या वेरीफाई करते हैं, पहले तो लोकेशन, जो भी वेल डिग करना है वो किस लोकेशन पे डिग करने वाले हैं, वहां पे ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, उस एरिया का रेनफॉल कितना है, और नियर बाय नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम नियर बाय वेल, जो भी उन्होंने लोकेशन बोली है वहां से नियर बाय वेल का डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें वेरीफाई की जाती है इन केस ऑफ लोन इज गोइंग टू बी एडवांस फॉर वेल डिगिंग. लाइकवाइज हर एक टाइप ऑफ लोन के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स को वेरीफाई किए जाते हैं. ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट सबमिटेड टू ब्रांच मैनेजर. जो भी फील्ड ऑफिसर अब विजिट करेगा तो वो सारे जो भी उसने वेरीफाई किए वो सारे एक रिपोर्ट में लिखेगा और वो रिपोर्ट ब्रांच मैनेजर को सबमिट करेगा, एंड ब्रांच मैनेजर विल टेक द फाइनल डिसीजन अबाउट द सैंक्शनिंग ऑफ लोन अमाउंट. नेक्स्ट वी हैव द क्राइटेरिया फॉर लोन एलिजिबिलिटी. नाउ once the report of farm visit is submitted to the branch manager,
Now branch manager, he will verify all the details which are written on the report submitted. Now here he will verify 5 C's of credit, 3 R's of credit and 7 P's of principal. He will verify all these criteria of economic feasibility, and based on this he will make the decision whether to give loan for farmers or no. So this is the criteria for loan eligibility. Next is sanction of loan. Now once the branch manager he has verified the report submitted to him, the branch manager he will take decision whether to sanction the loan or not to sanction the loan based on the report submitted. Now before sanctioning, branch manager will consider the technical feasibility, economic viability and bankability of proposed projects including repayment capacity. जो भी सारे हमारे क्रेडिट एनालिसिस के क्राइटेरियाज है, 5 C's, 3 R's एंड 7 P's, वो सारे ब्रांच मैनेजर एक बार फिर से कंसीडर करता है बिफोर सैंक्शनिंग ऑफ लोन, एंड he will consider all these criteria before making the decision. Now loan amount जो है beyond the sanctioning power of branch है, सपोज वो बहुत बड़ी अमाउंट का लोन फार्मर ने डिमांड किया है, तो उस केस में ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, वो लोन एप्लीकेशन वो रीजनल मैनेजर या हेड ऑफिस ऑफ द बैंक को फॉरवर्ड करेगा, and based on their recommendation, and also he will write his recommendation on that loan application whether it is feasible this loan amount can be given or not. And then the office examines the proposed projects and takes final decision. जो भी हेड ऑफिस है या रीजनल मैनेजर है, वो फिर से वो सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि देना चाहिए या नहीं, एंड वो उनका डिसीजन ब्रांच मैनेजर के पास कम्युनिकेट करते हैं फॉर द फर्दर एक्शन. Now after this sanction of the loan, now farmer is asked for submission of the documents. That is 7th step is submission of requisite documents. Once the loan has been sanctioned, the various documents have to be submitted by the farmer borrower to the bank. First is promissory note, demand promissory note. That is, I am payable so much and so amount to this bank. That is, promissory note should be submitted. Deed of hypothecation of movable property. जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रखी होती है लोन के लिए, तो उसके एक बॉन्ड बनाया जाता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की है या हाइपोथिकेट की है. सो डीड ऑफ हाइपोथिकेशन एंड डीड ऑफ मॉर्टगेज. मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हाइपोथिकेशन, इमूवेबल है तो मॉर्टगेज. देन गारंटी लेटर, जो भी गारंटर है उसका भी एक लेटर, दैट आई एम गारंटर फॉर दिस लोन. देन इंस्टॉलमेंट लेटर, authorization letter regarding repayment of loan from marketing agency. So these are the various documents which farmer has to submit after his loan has been sanctioned. Now एक बार उसने ये सारे documents submit किए बैंक में, then the final whatever the loan amount is there, that is credited to the borrower's account. Immediately after the submission of requisite documents, the loan amount is credited to the borrower's account. The sanctioned loan amount is disbursed in phased manner. एक ही बार में सारा लोन उसकी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा. It will be disbursed in phased manner. मतलब सपोज अब इन लोन एप्लीकेशन उसने क्रेडिट फ्लो दिया, कैश फ्लो दिया है, उसको किस वक्त उसे लोन की जरूरत है वो भी उसने मेंशन किया होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस फेज में रहता है. फर्स्ट एक 20% अमाउंट लोन का वो क्रेडिट किया जाता है, 2-3 महीने बाद फिर से 20% ऑफ लोन अमाउंट इज डिस्बर्स. लाइकवाइज फेजेस में लोन अमाउंट दिया जाता है फार्मर्स को. बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ इनकम ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, रियलिस्टिक रीपेमेंट प्लान इज प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू फार्मर. जो भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, जो भी लोन प्रपोजल के जिस काम के लिए लिया है, वहां पे उनके इनकम, फ्यूचर इनकम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है. दैट इज फ्लो ऑफ इनकम. बेस्ड ऑन दैट फ्लो ऑफ इनकम, the repayment plan is structured for the farmer and it is given to the farmer. Next, 9th step is post credit follow up measures. Now जो भी लोन अमाउंट दी है वो फार्मर प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, इसलिए बैंकर्स क्या कहते हैं, फील्ड ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर
वो क्या कहते हैं, पोस्ट क्रेडिट फॉलोअप, मतलब आफ्टर सैंक्शन ऑफ लोन ऑल्सो द ब्रांच मैनेजर ऑफ फील्ड ऑफिसर दे विल पे विजिट टू द फार्मर्स फील्ड to see whether his whatever loan he has taken he is utilizing it properly or not. Apart from this, even farmer can get the technical advice if needed from the field officer. Field officer से technical advice, जो भी project वो किस पर्पस के लिए उसने लोन लिया है वो कंप्लीट करने के लिए अगर उसे कोई टेक्निकल नॉलेज एडवाइस चाहिए तो वो फील्ड ऑफिसर से ले सकता है फार्मर. Then these visits are helpful for developing close rapport between the farmers and the banker. इस विजिट से क्या होता है, फार्मर्स और बैंकर में एक क्लोज रिलेशन, एक अच्छा कैसा रिलेशनशिप बनता है. And the visits are more informal than formal. These visits are informal in nature. These visits also help in assessing and if further requirement of supplementary credit to complete the scheme. और भी जो अगर उस फार्मर्स को क्रेडिट की नीड हो सकती है तो वो असेस करने के लिए भी पोस्ट क्रेडिट फॉलोअप हेल्प करता है. एंड लास्ट स्टेप इज रिकवरी ऑफ लोन. अब लोन एडवांस हो गया, लोन का यूटिलाइजेशन भी हो गया, लास्ट इज रिकवरी ऑफ लोन, दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन. Well in advance, bank reminds the farmer borrower about the due date of loan repayment. जो भी ड्यू डेट है लोन रीपेमेंट की वो well in advance बैंक फार्मर्स को रिमाइंड करते रहते हैं. Now, some appropriate measures like organizing recovery camps, special drives, village meetings, they are organized by the banks to recover the loan. Now, in case of default, that is, if farmer fails to pay the loan in the within the due date, then what are the reasons for such thing? It is assessed. तो उसने ड्यू डेट के पहले लोन नहीं भरा, वो डेट निकल गई और अभी तक लोन रिपे नहीं हुआ, तो उसका कारण फील्ड ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर असेस करते हैं. एंड बेस्ड ऑन दिस वेदर ही इज विलफुल डिफॉल्टर और नॉट, मतलब उसने जानबूझ के नहीं भरा है या उसकी कोई और रीजन है जिससे वो लोन अमाउंट रिपे नहीं कर सका, तो वो नॉन विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं. Now, if he is found to be non-willful defaulter, मतलब वो non-willful नहीं है, then in this case he will be helped further by extension. Again, fresh assistance is given. Again, fresh loan is given to the farmer to increase his farm production. अगर वो willful defaulter है, willful defaulter मतलब जानबूझ के उसके पास वो जो भी लोन अमाउंट से उसके इनकम जनरेट हुआ है लेकिन फिर भी उसने जानबूझ के लोन अमाउंट रिपे नहीं किया है, तो उस केस में बैंक ऑफिशियल्स क्या होते हैं, वो स्ट्रिंजेंट मेजर्स वेरियस कोर्ट के थ्रू लॉ वो लोन को रिकवर करते हैं. In some possible cases, banks make some tie-up arrangement. That is, recovery of loan is linked with the marketing. Some cases में क्या होता है कि मार्केटिंग के साथ, अगर सपोज फार्मर फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में स्टोर कर रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट वेयर हाउस रिसिप्ट फार्मर, और जब वो मार्केट करे, जब भी वो वेयर हाउस की हुई स्टोर की हुई कमोडिटी वो मार्केट करेगा, तो वो वेयर हाउस उसे बैंक को they will send a message to bank that the crop is going for sale. So जो भी मार्केट करके उससे पैसा आता है वो लोन रिकवरी के लिए यूज किया जाता है. So this is the recovery of loan. Now we'll see about the repayment plans. जो भी लोन लिया है तो वो कैसे रीपे किया जाता है, कि किस फेज में रिकवर किया जाता है, उसे हम रीपेमेंट प्लान कहते हैं. Now repayment of term loans, that is term loans मतलब medium term and long term loans, differ from that of short term loans because term loans are partially liquidating and short term loans are self liquidating loans. जो भी इनकम उनसे जनरेट होता है वही वो लोन रिपेमेंट के लिए यूज किया जाता है. एंड दिस इज द शॉर्ट टर्म, विद इन 6 to 18 months द लोन अमाउंट विल बी रिकवर्ड. बट टर्म लोन्स वो 5 to more than 1 year, more than 2 years to 20 years, more than 20 years, उतना टाइम तक लोन अमाउंट का टाइम रहता है. तो उस केस में वो पार्शियल लिक्विडिटी रहते हैं और हर एक टाइप ऑफ लोन का रीपेमेंट प्लान अलग अलग होता है. Now these loans are recovered by number of installment, either
वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में हर साल इतना अमाउंट रिपे किया जाता है या होल अमाउंट एक ही बार में रिपे किया जाता है. सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन. नाउ देयर based on this there are 6 types of repayment plans, right? That those are straight end repayment plan, partial repayment plan, amortized repayment plan, in which we have amortized decrease repayment plan and amortized even repayment plan. Then variable repayment plan, optional repayment plan, and reserve repayment plan. So these are the 6 types of repayment plans for the term loans. Now first we see the straight end repayment plan, or it is also called as single repayment plan or lump sum repayment plan. As the name indicates, it is the clear the loan, जो भी loan amount है along with जो भी loan amount है full, वो एक ही बार में at the end of the time expiry of stipulated time period. For example 5 साल के लिए लोन लिया है, तो at the end of 5th year जो भी टोटल लोन अमाउंट है वो सारा क्लियर हो जाता है. Now प्रिंसिपल कंपोनेंट, लोन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ एंड इंटरेस्ट इट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट रिपेड. सो जो प्रिंसिपल अमाउंट है that is the initial loan which is taken, and this is the interest charged on this principal amount. ये principal amount जो है वो at the end of the expiry of the period उस वक्त भरा जाता है. और ये जो इंटरेस्ट है ईयरली इंटरेस्ट 10%, सपोज 10% पर एनम इंटरेस्ट है, तो 10% जो है वो हर साल पे किया जाता है. और प्रिंसिपल अमाउंट सपोज 10,000 है, वो एक ही बार में एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड वो भरा जाता है. So this is the straight end repayment plan. The second we have the partial repayment plan. It is also called as balloon repayment plan. इसमें क्या होता है, the repayment of loan will be done partially over the years. जो भी टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट है, जो भी अमाउंट रिपेबल है वो इंस्टॉलमेंट्स में भरा जाता है. और जो ये इंस्टॉलमेंट है वो ओवर द इयर्स डिक्रीज होता जाता है. मतलब सपोज 5 इयर्स के लिए लोन है, तो पहले ईयर में 10,000 लिया है प्लस इंटरेस्ट रेट सपोज उसका 2,000 हो गया, तो टोटल 12,000. Now this 12,000 which he has to pay back, this will be distributed over the 5 years. Now suppose in first year he will pay 3,000 rupees. Then in second year he will pay 2,500. Third year he will pay 2,000 rupees. Fourth year he will pay 1,500 rupees. Now remaining amount, whatever is the remaining amount, now 5,000, 7,500, 8,000, 9,000. This is the 9,000, and still how much amount is remaining? Still 3,000 amount is remaining. So this 3,000 will be paid in the 5th year. So this is called as the balloon repayment plan, because this is the decreasing. जो पहले जो repayment installments है वो decreasing होते जा रहे हैं, and at the end there is lump sum paid. So this is the because of this it is called as balloon repayment plan. Now under this repayment plan, installment amount will be decreasing as the year pass by, and except in the maturity year. मतलब final year में जो भी amount total बचा हुआ है वो सारा final year में भरा जाता है, during which investment generates the sufficient revenue. This loan is also called as balloon repayment plan, as large final payment is made at the end of the loan period. पहले छोटे छोटे अमाउंट्स पे किया, एंड में बहुत बड़ा अमाउंट रीपे किया जाता है, इसलिए उसे बलून पीरियड कहते हैं. एंड एट द एंड ऑफ एंड आफ्टर द सीरीज ऑफ स्मॉल पार्शियल पेमेंट्स. सो दिस इज द पार्शियल रीपेमेंट प्लान. थर्ड वी हैव द अमोर्टाइज्ड रीपेमेंट प्लान. अमोर्टाइजेशन मतलब रीपेमेंट ऑफ एंटायर लोन अमाउंट इन सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट. जो भी एंटायर लोन अमाउंट, लोन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, वो लोन अमाउंट है, वो सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में जब हम भरते हैं उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं. नाउ दिस मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ पार्शियल रीपेमेंट प्लान. पार्शियल रीपेमेंट प्लान का एक्सटेंशन क्या है?
अमोर्टाइज रीपेमेंट प्लान, उसमें भी दो टाइप्स है, अमोर्टाइज डिक्रीज रीपेमेंट प्लान एंड अमोर्टाइज इवन रीपेमेंट प्लान। अमोर्टाइज डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान में क्या होता है, यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट डिक्रीजिंग, अमोर्टाइज डिक्रीजिंग मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट्स है ओवर अ पीरियड डिक्रीज होते जाते हैं, इसलिए इसे अमोर्टाइज डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान का है। Here the principal component remains constant over the entire repayment period and interest rate part decreases. Now principal amount, suppose लोन का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब इनिशियल जो लोन लिया है वो 10,000 का है और 5 इयर्स का टाइम है लोन पीरियड, तो ये 10,000 5 इयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, that is 2,000 per year and this is the principal part, and on this interest, suppose total interest is 3,000 rupees. So this 3,000 rupees is divided into such a way that in first year the interest part is highest, and it, as the year passes this interest component will goes on decreasing. So this is just if we remember this graph, we'll remember what is meant by amortized decreasing. यहाँ पे principal amount जो है throughout the year वो कांस्टेंट रहती है, इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। एज द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स फिक्स्ड एंड इंटरेस्ट अमाउंट डिक्रीजेस, द एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिक्रीजेस ओवर द ईयर। जो इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंसिपल कांस्टेंट है लेकिन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या होता है जो भी एनुअल इंस्टॉलमेंट है ओवर द ईयर्स वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इस रीपेमेंट प्लान का नाम है अमोर्टाइज्ड डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान। Now loan advance for machinery and equipment fall under this category. जो भी मशीनरी लोन्स इक्विपमेंट के लिए लोन्स ले रहे थे वो इस by this plan the amount is repaid, because उसमें क्या होता है स्टार्टिंग ईयर में उसके इनकम जनरेटेड बहुत होते हैं, मशीन से इक्विपमेंट से इनकम जनरेटेड हाई रहते हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स उसका डिप्रिसिएशन या रिपेयर कॉस्ट इंक्रीज होता है, तो वहां पे लोन रिपे करने के लिए अमाउंट उसकी कम होती जाती है, इसलिए amortized decreasing plan is followed in case of machinery and equipment loans. Second, we have amortized even repayment plan. Here annual installments over the entire loan period remains constant. As name indicates, even repayment plan मतलब installment जो है वो पूरे लोन पीरियड में सेम रहता है। यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोपोर्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्रीजेस, यू कैन सी हियर प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो ओवर द इयर्स इंक्रीज होता जा रहा है और इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, तो इसलिए क्या होता है जो भी टोटल इंस्टॉलमेंट है वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। Now this method is adopted for loans guaranteed for farm development, digging of wells, deepening of old wells, construction of godowns, dairy, poultry units. इसके लिए जो लोन्स दिए उस लोन रीपेमेंट के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। Now annual installment is calculated by formula I is equal to I मतलब ये annual installment is equal to B, that is principal amount borrowed into I divided by 1 minus 1 plus I whole raised to n. So this is the formula to calculate the annual installments to be paid over the years. This is the amortized even repayment plan. Next we have the variable repayment plan, also called as quasi variable repayment plan. यहाँ पे क्या होता है, as the name indicates, the various level of installments are paid by the borrowers. जो भी इंस्टॉलमेंट्स है वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो वेरिएबल रहते हैं, so this is as the name suggests, it is the variable repayment plan. Now for example, at the times of good harvest larger installment is paid and at the time of poor harvest smaller installment is paid by the borrower. जब भी एक फार्मर को इस साल सपोज हायर इनकम मिला है, अच्छा यील्ड मिला है, उससे अच्छा इनकम हुआ है, तो वो इस साल में ज्यादा इंस्टॉलमेंट पे करेगा, और अगर अगले साल अगर वही हार्वेस्ट कम हो गया, इसका यील्ड कम हो गया, रिटर्न्स कम हो गया, तो उस साल वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थोड़ी कम करता है। सो दिस इज द वेरिएबल रीपेमेंट प्लान। So according to convenience of the borrower, the amount of loan is loan installment amount जो है वो वेरी करते हैं। This method is not found in lending institution or financial agency.
ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसीज है, वहां पे ये मेथड यूजुअली नहीं फॉलो की जाती है। ये मेथड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है, फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, वहां पे ये फॉलो की जाती है। देन नेक्स्ट इज द ऑप्शनल रीपेमेंट प्लान। Optional repayment plan मतलब here in this method an option is given for the borrower to make payment towards the principal amount in addition to regular interest। वो किस में यहाँ पे पूरा चॉइस बोरोवर बोरोवर को दिया जाता है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट कैसे पे करना चाहता है। So this is the optional repayment plan. And last one we have the reserve repayment plan, or also called as future repayment plan. This type of repayment is seen with the borrowers in area where variability in farm income, जहाँ पे फार्म इनकम के बारे में बहुत सारी वेरिएबिलिटी है, उस एरिया में ये टाइप ऑफ रिपेमेंट प्लान देखा जाता है। In such areas, farmers are haunted by the fear of not paying the regular loan installments. यहाँ पे फार्मर्स को एक फियर रहता है कि मैं इन लोन अमाउंट को रेगुलरली पे नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, टू अवॉइड सच सिचुएशन farmer makes the advance payment of loan from the savings of previous year। इस साल का जो इंस्टॉलमेंट है वो पहले ही वो भर देता है from his savings, because he don't want to take the tension of not paying the loan installment regularly। Now this type of repayment is advantageous to both banker and the borrower। The bankers need not worry regarding the loan recovery। बैंकर के सर पे लोन रिकवरी का टेंशन नहीं होता when the crop failure and also borrowers, for them also it is beneficial because it helps to keep his integrity and credibility। जो भी उसके मॉरल कैरेक्टर्स है वो मेंटेन करने के लिए बोरोवर को हेल्प करता है। बैंकर्स को भी लोन रिकवरी के बारे में टेंशन नहीं है, वो उस बारे में वरी नहीं करता है, उसे पता है कि फार्मर वो लोन रिपेमेंट करेगा। सो दिस इज द रिजर्व रिपेमेंट प्लान।